तो स्वागत है आपका डे 3 में। लेकिन आप सबको मालूम है कि मैं डे 3 पर जाऊंगा ही नहीं जब तक मैं डे 2 तक जो किया वो आपको रिवाइज न करवा दूं। सो यू लव रिविजन, आई लव रिविजन एंड यू बाउंड टू लव रिविजन। आगे आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर हमने वो रिवाइज नहीं किया जो कल तक हमने क्या पढ़ा था। देखिए, रिकैपिचुलेशन इज द बेस्ट मेथड। नाउ सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 के बाद हमने पढ़ा था लॉजिकली सेक्शन 4, हु इज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो वी गॉट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 clause B that is deemed to be in practice, and every deemed to be in practice should have certificate of practice that is given under section 6. If you hold certificate of practice up to 5 years in India, you will get FCA and status, otherwise you are always ACA. Then we got that your name could be entered in the register of member only when you comply with section 8. Then we came to know that you have section 7 which says that designation must be of a chartered accountant. For practicing there is something different, and for in service they are different. So if we revise in serial number, so 2 subsection 1 clause B is about deemed to be in practice. 2 clause subsection 2 says who is a chartered accountant. Section 4 says that who can be a member. Section 5 says FCA, ACA. Section 6 says COP. Section 7 says designation. Section 8 says disability to become, या disqualification to become chartered accountant. After that we came to section 21, that disciplinary proceeding will be there, and if there is schedule 1 point it will go to BOD, and if it is schedule 2 point then it would go to DC. Then we had section 22, professional and other misconducts have been defined in that particular section 22. After that, now what we have to do? Then we went to schedule, and we went to the first schedule, and in that first schedule we had clause number 1, allowing a person to practice in his name. Then we had clause number 2, share given. Then we had clause number 3, share taken. So this is known as simple revision, and then we move ahead. तो अब let's start with the clause number 4. Clause number 4 says that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India. So now this clause is purely talking about what? Partnership. Enters into partnership in or outside India with a person other than chartered accountant in practice or member of any other professional body or person having such qualifications. And these two we have already seen, they are superiors. सर, अगर आप इसको बेयर एक्ट से पढ़ने जाओगे
तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के शेड्यूल में जो क्लॉज नंबर 4 मिलेगा उसके बीच में एक लाइन और मिलेगी, हु हैड बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड हैड बीन ट्रीटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। वो 1998 तक हमने बायलैटरल ट्रीटीज कर रखी थी कई कंट्रीज के साथ, जिनमें हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, पूरा जो यूके है उस यूके के हर मेंबर के साथ हमारा जो था बायलैटरल ट्रीटी था, और उसके बाद हमने वो बायलैटरल ट्रीटी खत्म कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास किसी भी कंट्री का बायलैटरल ट्रीटी नहीं है। किसी भी कंट्री के मेंबर को अगर हमारा मेंबर बनना है तो उसको 2 या 3 एग्जाम देनी पड़ती है, तब जाकर वो हमारा मेंबर बन जाता है। जब वो हमारा मेंबर बन जाता है तो फिर वो मेंबर इन प्रैक्टिस ही हो जाता है। सो सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में आपको क्लॉज 4 में बस इतना ही लिखना है, बाकी वो जो बीच का इनऑपरेटिव क्लॉज है वो मैंने यहां से हटा दिया है। A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with a person who is not a chartered accountant in practice और सुपर 8। यानी आपके पास कुल 9 लोग हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। 4 + 5 9। How 9? CA in practice, that is most important. CA must be in practice, that is most important. And then super 8 CS, CWA, LLB, actuary, architect, and then those 3 BE, BTech and MBA। इतने लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, बाकी किसी के भी साथ आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। दैट इज सेफ, दैट इज इट। यानी हम पार्टनरशिप में एंटर करेंगे तो सिर्फ किसके साथ एंटर करेंगे सर? ओनली विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और दी सुपर 8। इनके अलावा किसी के भी साथ पार्टनरशिप अलाउड ही नहीं है। सो सिंपल। इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बोथ। माइंड इट वेरी केयरफुली। In India as well as outside India, it is not permissible to you to enter into partnership with any of the person other than these 8. इससे ज्यादा these 9, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं उस दिन भी समझा चुका था कि प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट अलग होता है और पार्टनरशिप अलग होती है। पार्टनरशिप में उसके किए गए काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे काम के लिए वो जिम्मेदार है, हम दोनों म्यूचुअल एजेंट्स हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब तो मैंने आपको काम दिलवाया, आप मुझे कमीशन दे दो, आप मुझे काम दिलाओ, मैं आपको कमीशन दे देता हूं। काम तो आप ही कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल भी आप हो, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लॉज 2 and 3 एंड देन 4। तो अनलेस क्वेश्चन में पार्टनरशिप वर्ड ना आए तब तक क्लॉज नंबर 4 मत लगाना। इट वुड गो टू क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3। माइंड इट वेरी केयरफुली। गॉट इट? नाउ so we can enter into partnership with 9%. That is all about clause number 4. Okay. Now, clause number 4 says that if you enter into partnership in or outside India with a person other than CA in practice or member of any other professional body or person having such qualifications, that is it. So that is clause number 4. Now comes
क्लॉज नंबर 5। देखिए अब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक ही काम कर रहा है, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5। दैट वो कैसे न कैसे करके अपना नेटवर्क बना रहा है ताकि उसे काम मिल जाए। अभी काम की खोज जारी है। इस वक्त बंदा खोज रहा है कैसे काम ले लूं। काम आया नहीं है अभी हमारे पास, हम अभी खोज रहे हैं कि कैसे न कैसे करके हमको काम मिल जाए। दैट इज आवर मोटिव राइट नाउ। इवन अंडर क्लॉज नंबर 5 योर मोटिव विल बी दैट वन। लेट्स सी व्हाट क्लॉज 5 सेज। Clause 5 says that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he secures any business profession through services of a person who is not employee or partner or super 8। थोड़ा सा जो एरो है वो गलत बन गया है यहां पर। ये एरो यहां से जाना चाहिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस आइदर थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन और बाय मीन्स विच आर नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो भाई, मुझे बिजनेस जमाना है, कैसे जमाना? मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को लगाते हैं काम पे कि भाई बिजनेस लाओ या नहीं, क्योंकि अलाउड बोला उन्होंने। एम्प्लॉय ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट दे कैन सिक्योर बिजनेस फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई पार्टनर तो बिजनेस सिक्योर करने के लिए होता है, वहां कौन सी दिक्कत है। और इनके साथ अपन ने सेक्शन क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 के अंदर अरेंजमेंट किया है, तो ये भी बिजनेस दिलाने के अरेंजमेंट किए अपन ने क्लॉज 2 में और क्लॉज 3 में और क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 में तो पार्टनर ही हो गया, 2, 3 में बिजनेस, यानी कुल मिला करके अब आपके पास एक बंदा और आ गया है, जो सीए हो भी सकता है, जो सीए नहीं भी हो सकता है। जो सीए है तो सीओपी होल्ड कर भी सकता है और सीओपी होल्ड नहीं भी कर सकता है। सब कवर्ड है, एम्प्लॉय है ना। सिक्योर एनी प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट हिज एम्प्लॉय। मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उसको लाइसेंसिंग के लिए लगा के रखा हुआ है। मुझे कहीं से भी लीड मिलती है कि भाई यहां पर काम देना चाहता है एंटिटी, और वो मुझसे पूछता है कि भाई आप ऐसा काम करते हैं क्या, तो मैं बोलता हूं सर मेरा स्टाफ आपको आएगा, आके आपको समझाएगा, कन्विंस करेगा, आप मुझे काम दे दीजिए। यहां पर कन्विंसिंग स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ नहीं है। माइंड इट वेरी केयरफुली। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको गलत ना लें। अगर हमने इनको गलत ले लिया तो पता चला हमारे आर्टिकल्स जो है उनका तो कॉल सेंटर ही बना दिया हमने अपने ऑफिस में, कि वो हर लड़कियां, जितनी भी लड़कियां चार्टर्ड आर्टिकल्स हैं वो सब सुबह सुबह फोन लगा रही हैं। पूरे इंदौर में, पूरे मुंबई में, पूरे जयपुर में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे वडोदरा में, सब दूर राजकोट में, सब दूर फोन लगा रही है आपको ऑडिट करवाना है। हमारे बॉस बहुत अच्छा ऑडिट करते हैं, सस्ता सुंदर और टिकाऊ ऑडिट किया जाता है हमारे यहाँ। ऐसा कोई भी काम मत कर देना विच इज नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये ओवर द टॉप है। दिस पॉइंट इज ओवर द टॉप। दिस पॉइंट इज ओवर द टॉप ऑफ ऑल दीज थ्री। You always can secure work through services of your employee. You can always secure
business through services of person who is your partner. You can always secure business through services of a person who is neither your employee nor your partner, but arrangements which are allowed under clause 2 and 3 and 4. But top of the above, you need to be very cautious that you should not secure business through those means which are not open for a chartered accountant in practice to secure business. Now, what are the means which are not open for a chartered accountant in practice? I am dealing it in clause number 6 and in clause number 7, but not right here. Some more examples of clause number 5. Yes, you can have. मैंने एक नया दिमाग लगाया, नई चार्ट अकाउंटेंट फॉर्म बने, घनघोर। मैं क्यों दिमाग लगाऊं, घनघोर लगाना ना दिमाग, आओ जरा घनघोर से दिमाग लगवाते हैं। हमारे घनघोर साहब ने जबरदस्त दिमाग लगाया सर, ओ हो, क्या दिमाग लगा रहे हैं। सी व्हाट, हाउ ही अप्लाइज हिज माइंड। मिस्टर घनघोर अब क्या कर रहे हैं, टेबल तो अपन बाद में बनाएंगे, अभी मिस्टर घनघोर से अपन बात कर लें जरा क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या नया शगुफा लाया। अरे तो बहुत गजब आदमी। इन्होंने क्या किया साहब, इनके पास एक क्लाइंट आया, ये थे, इनके पास एक क्लाइंट आया कि सर मेरा जो है ना आप टैक्स ऑडिट कर दो, जीएसटी ऑडिट भी कर दो और मेरे रिटर्न्स भी फाइल करवा दो। कितने फीस लोगे? घनघोर साहब ने कहा 50,000। भाई तो भड़क गया, बोले भाई साहब 50,000 रुपए में दूंगा क्या आपको, यार कैसी बातें कर रहे हो यार आप, छोटी सी पार्टनरशिप फर्म है, हालांकि टैक्स ऑडिट हो रहा है, जीएसटी ऑडिट हो रहा है, बात सही है माना, पर आप इतना बड़ा भी मत समझो यार हमको, कि आप तो मतलब चालू ही हो गए। 50,000 रुपए नहीं हो पाएगा। घनघोर ने कहा तुमने मेरी स्कीम कहां सुनी है, अभी स्कीम तो सुनो। क्या? तुम मार्केट में जाओ, किसी एक बंदे को बोलो और कन्विंस करो कि वो मुझसे ऑडिट करवाए। तुम्हारे व्यापारी बंधुओं के कनेक्शन में सबके पास जाओ और सबसे कहो कि वो मुझसे ही क्या करवाएं, ऑडिट। हर क्लाइंट लाके दो, मैं उनसे 50,000 चार्ज करूंगा, 10,000 तुमको वापस करूंगा। 5 क्लाइंट लाके दोगे ना घनघोर भैया तो तुम्हारी पूरी फीस वापस हो जाएगी, तुम्हारा काम तो फोकट में हो जाएगा भाई साहब। बताइए क्या दिमाग चला रहे मिस्टर घनघोर। मिस्टर घनघोर ने अपने क्लाइंट को ही अपना मार्केटिंग पर्सन बना डाला। अब वो क्लाइंट जिसको छोड़ा वो इसी जुगत में लगाया कि मेरे को 5 लाना है, और ऊपर वाली बात तो आपने मानी नहीं है। ये जो आया ना नया, ये नया बंदा जिसको घनघोर ने भेजा इधर, इसको भी यही स्कीम दे डाली कि तू और 5 ढूंढ। मतलब इसने दिए 5, फिर हर आपको 5 दे रहा है, और जो भी 5 दे रहा है, क्या क्लाइंट बढ़ रहे हैं आपके सब। हर आदमी अपनी फीस वसूलवाने में ही लगा हुआ है। ये 5 जाके और 5 को पकड़ के लाएंगे, वो 5 जाके और 5 को पकड़ में लाएंगे। ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई सर। This is not by means which are open to a chartered accountant in practice. These are not means which are open to a chartered accountant in practice. Mind it very, very carefully. ऐसा कोई भी काम हमें इस तरीके से तो करना ही नहीं है।
should not do that by any means. Now let's move. What we have done till now, sir, we have done till now is just a moment. We are making a table. बहुत मजा आएगा आपको इस टेबल को बनाने में. आइए समझते हैं. What we have done is clauses. Let's have clause number 1. Now what I am taking here is CA holding COP. CA not holding COP. Others. Now CA holding COP. CA not holding COP. And others. Let's have. जरूरत पड़ी तो और भी ले लेंगे. सी CACOP your partner, CACOP your employee, CACOP other, CA not holding COP your employee, CA not holding COP other. Here others में we have Super 8. We have your employee or we are having any other person. So first is CACOP, CA in practice who is your partner, CA in practice who is your employee, CA in practice who is your neither employee nor partner. CA not holding COP your employee, CA not holding COP your partner. CA not holding COP other. He is not your employee, he is other. Others. Super 8 and then some person who are not chartered accountant but your employee or some other person who is other person, neither your employee nor Super 8, nothing. Clause number 1. मैं इनमें से किन किन को प्रैक्टिस अपने नाम से प्रैक्टिस करने की इजाजत दे सकता हूं. तो सर he must be chartered accountant in practice and either my partner or my employee, but I cannot allow any one of them to do what? Secure business in my name. मेरे नाम से बिजनेस करने की इजाजत नहीं दे पाऊंगा सर, मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा. बहुत क्लियर. सिर्फ इन दो को ही दूंगा. Those who are having certificate of practice, either they are my partner or they are my employee. That is it. Clause number 2. I can share ethical with member of ICI. When member of ICI comes, all are allowed. Super 8, yes, I have been allowed. Others employee, no. Any other person, no. Clause 3 is again the same, that I can have partnership, I can share all these things. Then came 4, partnership. But that partnership can only be done with चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ये तो अप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि पहले से पार्टनर है तो कोई दिक्कत नहीं. एम्प्लॉय अगर है
तो उसे पार्टनर वाले कोई दर्जा नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज ये दो चीजें यहाँ अप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसके पास CA COP है और वो अदर है, तो आई कैन मेक हिम पार्टनर। बट CA not having COP, I cannot make him my partner. Super 8, I can make them partners. My employee who is not a CA, I cannot make him partner. I want to secure business through services of a person who is not my partner. So who is your partner? You can. Who is your employee? It is employee, but it is allowed under subsection जो clause 2 में allowed है और clause 3 में allowed है, वो तो clause 5 में allowed ही है। तो 2 में और 3 में जितने लोग allowed हैं, वो सारे लोग कहाँ allowed है? clause 5 में। और clause 5 में एक बंदा और allowed है जो आपका एम्प्लॉय है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो ना आपका एम्प्लॉय है ना कोई और है, वो तो आपको allowed ही। Look at this section first and then decide this table first and then decide, is there any problem you are facing? See, any person can you can have any person to practice in your name only when he is having certificate of practice and is either your partner or your employee. You can share with member of ICI. So he is member of ICI, 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 he is member of ICI. Your partner, okay, retired partner, legal representative, deceased partner, and Super 8. Okay. Clause 3 on the same grounds, no doubt about it. Clause 4, you can enter into practice only with a chartered accountant who is in practice. Okay, and Super 8. Yes, you can secure business through services of a person who is your employee, who is your partner, or other persons who are allowed under clause number 2, 3 and 4. All these are allowed under 2, 3 and 4. That's it sir, that's it. इसे कहते हैं क्या? Clause number 5. अब शुरू करेंगे बड़ा सा clause, that is clause number 6, the most big clause, I must vast. तो अब हम हैं clause number 6 पर. What clause number 6 says to us? Clause number 6 is about soliciting client or soliciting professional work. Let's understand. अब तक जो था ना बॉस कि क्लॉज नंबर 1 था, क्लॉज नंबर 2 था, क्लॉज नंबर 3 था, क्लॉज नंबर 4 था, क्लॉज नंबर 5 था, दैट वाज रिलेटिंग टू पर्सन्स. किन पर्सन से मैं काम मांग सकता हूं और किन पर्सन से मैं काम नहीं मांग सकता. दैट वाज द ओनली लॉजिक अंडर क्लॉज 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब चीजें बदल रही है. क्लॉज नंबर 6 एंड क्लॉज नंबर 7 आपको बता रहे हैं मीन्स टू गेट टू वर्क. किन तरीकों से आप काम लेकर के आ सकते हो यहां, किन तरीकों से आप काम लेकर आ सकते हो यहां, बस ये बताना चाह रहे हैं हम. कहां? क्लॉज नंबर 6. क्लॉज नंबर 6 सेज दैट a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits client or solicits professional work. Solicit का मतलब पीछे पड़ना, मांगना, किसी के भी पीछे पड़ जाना, फॉलो अप करना कि सर आप मेरे को काम दो, सर आप मेरे को काम दो, सर आप मेरे को काम दो. दैट इज कॉल्ड सॉलिसिट. आप न तो क्लाइंट को सॉलिसिट करेंगे
ना प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करेंगे, ना तो डायरेक्टली सॉलिसिट करेंगे, ना तो इनडायरेक्टली सॉलिसिट करेंगे। सर, ना तो आप डायरेक्टली सॉलिसिट करेंगे, ना आप इनडायरेक्टली सॉलिसिट करेंगे, ना तो क्लाइंट को सॉलिसिट करेंगे, ना तो प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करेंगे। कैसे? सॉलिसिटेशन के भी तो तरीके होंगे ना। हाँ, सर्कुलर भेजकर भी सॉलिसिट नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट करके भी सॉलिसिट नहीं करना है, पर्सनल कम्युनिकेशन करके भी सॉलिसिट नहीं करना है, और इंटरव्यू के थ्रू भी सॉलिसिट नहीं करना है, और बाय एनी अदर मीन्स के थ्रू भी सॉलिसिट नहीं करना है। मतलब दीज वर जस्ट एग्जाम्पल्स। ये सिर्फ क्या थे? एग्जाम्पल थे। सर, आपको कहा गया कि बॉस सॉलिसिट मत करो, ना तो क्लाइंट को सॉलिसिट करो, ना प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करो, ना तो डायरेक्टली सॉलिसिट करो, ना तो इनडायरेक्टली सॉलिसिट करो, किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो सर्कुलर हो, चाहे फिर वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे फिर वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो, चाहे फिर वो इंटरव्यू हो, किसी भी तरीके से सॉलिसिट नहीं करना है क्लाइंट को। कभी देखा कि डॉक्टर का बंदा आपके पीछे पड़ गया, भाई साहब आपको इस बार डेंगू होना तो आप हमारे डॉक्टर साहब को दिखाना, ऐसे कभी हुआ? या कोई एडवोकेट का आदमी आपके पास आया और उसने कहा सर अब की बार आपका अगर कोई लीगल लफड़ा पड़े ना सर, आप इधर आइएगा, अपन काम करें। ऐसा कभी नहीं होता, नेवर हैपेंस इन एनी प्रोफेशन, और वो यहां भी नहीं करने देंगे। They are quite clear that you should not solicit your clients. आपकी गुडविल है तो क्लाइंट चल के आएगा। आप अच्छा काम करते हो तो आपकी कीर्ति फैलती, अपने आप आपकी गुडविल पर काम आएगा। आप इस तरीके से काम मांगने मत जाओ। It's very important. सर, मैं तो काम ले रहा था ना, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में काम मांग रहा था ना। मांगो ना। उन काम को मांगने की आपको मनाही है कब? मांगो। किसने मना किया आपको वो सारे काम मांगने से? नोबडी। मांगो वो काम। सर, यहां तो लिख दिया बाय एनी अदर मीन्स, नीचे एक्सेप्शन भी देंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एक्सेप्शन भी देंगे, और हर क्लॉज को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्शन देंगे। यू कैन नॉट सॉलिसिट योर क्लाइंट, यू कैन नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय सर्कुलर, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय पर्सनल कम्युनिकेशन, बाय इंटरव्यू, और बाय एनी अदर मीन्स। करना ही नहीं है सॉलिसिट। हां, कुछ एक्सेप्शन हम आपको दे रहे हैं। आप चाहें तो अप्लाई करें प्रोफेशनल वर्क के लिए किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही आपने एक मेल बनाया कि हेलो, आई एम अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नीड सर्टन वर्क। You can mail it to all chartered accountant in practice, but you cannot mail it to all chartered accountants who are in service. It's very, very, very important point here. You can apply, you can request, you can invite professional work from another chartered accountant in practice. अप्लाई करना है अप्लाई करो, रिक्वेस्ट करना है रिक्वेस्ट करो, इनवाइट करना है इनवाइट करो। अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से आप प्रोफेशनल वर्क मंगवाओ, कोई मना नहीं कर रहा आपको। वैसे भी हमने अलाउ कर रखा था 2, 3, 4 में।
सर आपने तो 2 में अलाउ किया था कि जो बंदा मेंबर है भले ही वो प्रैक्टिस में नहीं हो, सर्विस में हो, तो भी वो अपने को काम दे सकता है और अपन उसको शेयरिंग दे सकते। मैंने शेयरिंग अलाउड बोला था बॉस आपको, सॉलिसिटेशन अलाउड नहीं बोला था। सॉलिसिटेशन टू अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट इन प्रैक्टिस, नॉट अलाउड बाय एनी मीन्स। तो सर फिर उससे हम शेयरिंग कैसे करेंगे? उसने आपको काम ला के दिया, आपकी और उसकी मुलाकात हुई, उसने कहा मैं अपनी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ढूंढ रहा हूं। हमने कहा हम भी हैं, हम भी करते हैं ये काम, इसको सॉलिसिटेशन थोड़ी कहते हैं। भाई वो आया चल के, सो सिंपल। तो अप्लाई करो, रिक्वेस्ट करो, इनवाइट करो प्रोफेशनल वर्क, किससे? एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो प्रैक्टिस में। ओके, एक और राहत आपको दी गई है, यू कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स ऑल्सो। आप टेंडर्स को भी रिस्पॉन्ड कर सकते। आपके पास अगर कोई इंक्वायरी आई है तो भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। जो यूजर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे कहते हैं कि आप टेंडर फिल करें, आप बाकायदा टेंडर फिल कर सकते हैं। वो आपसे इंक्वायरी करते हैं, आप बाकायदा उनकी इंक्वायरी का जवाब दे सकते हैं। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टेंडर्स को, आप जवाब दे सकते हैं उनकी इंक्वायरी का। जो यूजर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपसे टेंडर मांगते हैं, इंक्वायरी मांगते हैं। टेंडर मीन्स निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। टेंडर्स आर बीइंग कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, a single entry system to double entry system in nagar nigams or nagar palika nigams or gram panchayats and all that, or conversion from cash basis to accrual basis in case of some gram panchayats and all. Tenders are invited from chartered accountants. Now tenders, can I fill those tenders? Yes, you can. But keep in mind one thing, टेंडर तो आप फिल कर रहे हो, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन थोड़ी इज्जत से टेंडर फिल करना, क्योंकि टेंडर के अपने डिसएडवांटेज है। अब जरा आप आत्मा को पकड़ो, इस पर्टिकुलर क्लॉज की आत्मा को अपन पकड़ते हैं। मानते हैं कि एक ग्राम पंचायत के ऑडिट है या ग्राम पंचायत के लिए टेंडर आया कि इनके कैश सिस्टम से अक्रूवल सिस्टम पर इनको ले जाना है। दैट इज द टेंडर विच हैज बीन कॉल्ड फॉर। अब सब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने देखा कि यार टेंडर्स आए हैं और टेंडर बड़े जोरदार हैं। एक एक ग्राम पंचायत हमको अगर दे रही है तो ऐसी कुल जमा इस राज्य की 5000 ग्राम पंचायत है। तो पता चला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिख दिया कि 20 रुपीज में बैलेंस शीट साइन कर दूंगा, 20 रुपीज में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दूंगा, और आपका अकाउंट्स का जो अक्रूवल वाला काम है वो मैं प्रति ग्राम पंचायत जो है वो 5000 रुपए में कर दूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के आर्टिकल ने उससे पूछा कि सर कुछ ज्यादा लो फीस नहीं हो रही? बोले नहीं, अपन वॉल्यूम में खेलेंगे, 5000 ग्राम पंचायत। अब साहब एक ग्राम पंचायत का काम आपने ले लिया कितने में? मामूली से 4500 रुपए। बैलेंस शीट भी दे रहे हो, P&L भी दे रहे हो, उसको अक्रूवल सिस्टम पे कन्वर्ट करके भी दे रहे हो। वैसे तो आपको ये तीनों काम करना ही नहीं चाहिए कि आप बुक कीपिंग भी करो और अकाउंटिंग भी करो, पर पहले हुआ है ऐसा। अभी तो नहीं होता है, पर पहले ऐसा हुआ है। मैं एक रियल किस्सा ही बता रहा हूं। तो सब 4500 रुपए मल्टीप्लाइड बाय कितनी ग्राम पंचायत है?
5,000। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,500। सुनिए आप वॉल्यूम कितना हो गया। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला मैं तो 3.5 में ही कर दूंगा, तीसरे ने टेंडर पर लेवल में 2,500 में ही कर दूंगा। तो इंस्टीट्यूट को लगा कि अगर इस तरीके से टेंडर्स अवेलेबल हो गए मार्केट में, कोटेशन मंगवाए जाने लगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में ही कट थ्रोट कंपटीशन में मर जाएंगे। तो काउंसिल ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया 2 साल पहले और कहा कि आपको ऐसे टेंडर्स को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है जहां पर वो सर्विस सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही दे सकता है। फॉर सर्विसेज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सीए इन प्रैक्टिस। मुझे ऐसे सर्विस वाले तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास सीओपी नहीं है, वो क्या यहां पर आके कुछ करेंगे। भाई पहली बात, क्या अक्रूवल सिस्टम पर ले जाने का काम सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कर सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। इट कैन बी डन बाय सीए, इट कैन बी डन बाय सीएस, इट कैन बी डन बाय सीडब्ल्यूए, इट कैन बी डन बाय एन एमकॉम। नाउ फर्स्ट थिंग, वेदर द टेंडर इज कॉल्ड फॉर अ सर्विस which can only be given by a chartered accountant in practice। क्या ऐसा है कि ग्राम पंचायतों के ऑडिट आप कितने में करेंगे, टेंडर भरिए? हाँ, अगर ग्राम पंचायतों के ऑडिट की बात आती है तो सर ऑडिट तो एक ही बंदा कर सकता है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है और हमने इसको इजाजत दे दी कि तू टेंडरिंग कर, तो सर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो ऑडिटी है वो बार्गेन कर लेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में से, और कट थ्रोट कंपटीशन के चलते डिसहार्मनी शुरू हो जाएगी, हार्मनी खत्म हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ने कहा भैया ऐसे टेंडर का कभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, ऐसा टेंडर कभी भी फिल करने की जरूरत नहीं है जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही अलाउड है और कोई अलाउड ही नहीं है। वजह समझ में आई? वजह सिर्फ एक कि अगर इस तरीके से हमने टेंडरिंग को अलाउ कर दिया ना बॉस, तो कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ जाएगी अपने ही मेंबर्स इन प्रैक्टिस के बीच में। अब सीन 2 है, सेकंड सीन, बुक कीपिंग के लिए टेंडर खुला, ग्राम पंचायतों की अक्रूवल बेसिस पे बुक कीपिंग करनी, निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, टेंडर्स कॉल किए जाते हैं फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूएस एंड अदर्स कॉम्पिटेंट, एमबीए, फाइनेंस, ऑल। अब सर अगर हम अपने टशन में रह गए, हम ये टेंडर फिल नहीं करेंगे, तो दूसरी फ्रेटर्निटी टेंडर उठा के ले जाएगी, काम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आएगा ही नहीं। तो बोला गया नहीं यार, एक काम करो, ऐसे टेंडर्स जिनके अंदर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया गया है, उनके अंदर कोई भी टेंडर भर सकते हैं, तो साला तुम तो टेंडर भरो, क्योंकि अब तुम्हारी कंपटीशन अंदर नहीं है, बाहर वालों से। अगला क्वेश्चन आता है, सर काम तो अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करने का है, लेकिन टेंडर में कहा गया है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही अप्लाई करेंगे। मतलब काम ऐसा है
जिसे कोई दूसरा कर सकता है। लेकिन अभी जो टेंडर कॉल किया ना, वो सिर्फ कौन भर सकता है? सीए इन प्रैक्टिस। तो एक काम करते हैं, सोच के देखते हैं कि अगर मान लो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो, मान लो मध्य प्रदेश शासन ने ग्राम पंचायतों के अकाउंटिंग के लिए टेंडर इशू किया और बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को आमंत्रित किया जाता है कि वो आए और टेंडर फिल करें। हमने नहीं किया, हमने कहा हमारे इंस्टीट्यूट ने मना किया, हम नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश राज्य सरकार कहेगी यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा भाव खाते हैं, अगली बार से ना इनको बिल्कुल टेंडर नहीं देना है, क्योंकि जब भी अपन टेंडर निकालते हैं इनका इंस्टीट्यूट मना कर देता है, इनको टेंडर नहीं फिल करना है, टेंडर ही फिल नहीं करते यार। तो इतना ही अगर भाव खा रहे तो फिर ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्यों कराए, कंपनी सेक्रेटरी से नहीं करा ले। अरे बॉस, अगर ऐसा इंस्टीट्यूट ने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा प्रभु कोई ऐसा काम जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी कोई कर सकता है, तो उसके लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से टेंडर मांगे गए हो तो भी भरो, और दूसरों से मांगे गए हैं तो भरो ही भरो, टेंडर फिल करो ही करो, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब एक एक्सक्लूसिव बात हमें समझ में आई कि अगर ऐसी सर्विस का टेंडर है जहां की औकात तो सिर्फ हमारी है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वी शैल नेवर रिस्पॉन्ड टू दैट टेंडर। बट एक काम ऐसा है जो हमारे अलावा भी लोग कर सकते हैं, हमने टशन दिखाया तो दूसरों को मिल जाएगा, तो फिर ऐसा टेंडर चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए भेजा हो या सबके लिए भेजा हो, दोनों फिल कर सकते हैं। तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक टेंडर आया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायतों का अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बन जाए, और इसके लिए हमने मिनिमम फीस रखी है 4,500 प्रति ग्राम पंचायत, सिर्फ बुक्स कन्वर्ट करने की मिनिमम। आप जब भी कोटेशन दें इससे ऊपर आप दें। अगर मिनिमम फीस कहां प्रिस्क्राइब्ड है? टेंडर में। नो प्रॉब्लम सर, जस्ट गो and fill that tender, because minimum fees, if it is prescribed, no problem in that sir. If minimum fees is prescribed, you must appreciate that tender. आपको जाना चाहिए उस टेंडर के साथ, कोई मना नहीं करेगा आपको। ओके, एक और बात है, कई बार इंडिविजुअल लेटर की इंक्वायरी आती है जिसमें ये नहीं बोला जाता कि हम सबसे मंगा रहे हैं। सरकार भी शानी है, वहां टेंडर वेंडर भरते हैं, जवाब नहीं देते। इंडिविजुअल लेटर पोस्ट करो इनको सबको, हर बंदे के ऑफिस में इंडिविजुअल लेटर आ गया कि हम ये काम देना चाहते हैं, आपकी मिनिमम फीस दो। सर उस इंक्वायरी का जवाब देना आपका धर्म है, सो सिंपल। अगर 1-to-1 इंक्वायरी करके 1-to-1 कोटेशन मंगाए गए आप दे दो, टेंडर मत फिल करो। 1-to-1 काम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेंडर फिल करवा देना तो रिस्ट्रिक्शन। एक और बात होती है टेक्निकल बिडिंग। टेक्निकल बिडिंग मतलब सर ऐसा है, ग्राम पंचायतों का ये काम हम उन फर्म्स को देना चाहेंगे जिन फर्म में कम से कम 5 पार्टनर्स हैं, कोई 2 FCA हैं, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज है और जिन्होंने पहले भी ये काम कर रखा है। तो ऐसे लोग हमें टेंडर फिल करें और
फीस के लिए जो नेगोशिएशन है हम 1-to-1 बेसिस पे करेंगे। वेरी गुड। यानी आपकी टेक्निकल बिडिंग तो होगी, लेकिन जो फीस डिसाइड होगी वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के द्वारा अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ऐसे टेंडर्स को भी आप फिल कर सकते। सच टेंडर्स यू कैन वेरी इजीली फिल। तो माय डियर फ्रेंड, टेंडर की बात क्या हुई, इसको अगर अपन समराइज कर लें किसमें, चार्ट में, तो मजा आ जाएगा। देखो लॉजिकली धीरे धीरे आप बात समझो, आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं आपको। वी आर अंडर क्लॉज नंबर 6 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स, बिजनेस और सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, chart about tender. Let's make a chart for tender. अच्छा, टेंडर कोई भी दे दे, गवर्नमेंट दे दे, गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो, और गवर्नमेंट को देना है तो गवर्नमेंट दे दे टेंडर, या प्राइवेट टेंडरिंग हो रही हो तो भी चलेगा, प्राइवेट एंटिटी भी टेंडर दे दे, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत इतनी सी है कि टेंडर जब आप फाइल करोगे तो दो बातें हैं। एक्सक्लूसिव एरिया, नॉन एक्सक्लूसिव एरिया। minimum fee prescribed, minimum fees not prescribed, technical bidding with individual negotiation, others. Don't fill, fill. You can fill that. Any doubt? Next. Non-exclusive area. What is non-exclusive area? It means the area is open to chartered accountants and non-chartered accountants both. Tenders called from CA in practice only. Tenders called from everyone, but from others also. Tenders called from CA in practice only. You can fill tenders. Others you can fill tenders. दोनों जगह टेंडर्स फिल कर सकते। लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी बॉस।
लॉजिक अगर क्लियर नहीं है ना, यू नो मीनिंग, लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर्ड? So again I am explaining exclusive area, not R area, for CA in practice. Minimum fees prescribed, you can fill it. Exclusive area for CA in practice, minimum fees not prescribed, don't fill it. But if there is a technical bidding with individual negotiation, fill it. Non-executive area, non-exclusive area, tenders called from CA in practice only, then also you can fill it. Tenders called from others also, here you can also fill it. This whole came in 2016. I have given FAQs in my book. Just go through those FAQs. You will find all this inculcated there. इसमें एक बात और है, अगर मान लीजिए बाद में इंस्टीट्यूट को कंप्लेंट हुई कि साहब ये जो टेंडरिंग वेंडरिंग होती है इसमें बहुत बहुत गड़बड़ हुआ था, एंड दिस टेंडरिंग वाज रियली अ नाइटमेयर फॉर ऑल ऑफ अस एज अ प्रैक्टिसिंग सीए, एंड यू शुड कॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज मेंबर हु हैव फिल्ड दिस टेंडर एंड मेड दिस मेस। और अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि भाई इनसे पेपर मंगाए जाए जो भी इन्होंने टेक्निकल बिडिंग के लिए दिए हैं, दोज पेपर्स कैन बी कॉल्ड, पेपर्स कॉल किए जा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टेंडरिंग। हम थे कहां सर, हम चालू कहां से हो गए? अरे सर, हम शुरू हुए हैं अभी तो क्लास 6 में, और क्लास 6 में हम देख रहे हैं कि एक चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर वो सॉलिसिट करता है क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब ये वर्ड आ जाता है ना सर, तो फिर कुछ भी बचता नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय सर्कुलर, by advertisement, by personal communication, or by interview, or by any other means, या किसी अन्य तरीके से। तो फिर सारे ही तरीके बैंड हैं। बट यस, हमारे मेंबर बहुत ही फर्टाइल ब्रेन के लोग हैं। वो लोग मिसकंडक्ट करने के नए नए तरीके इजाद करते गए, और इंस्टीट्यूट उन सारे लूपहोल्स को प्लग करता गया, और ऐसा करने में आपके स्टडी मॉड्यूल के 3, 4, 5 पन्ने बन गए, जो सिर्फ सॉलिसिटेशन ऑफ द क्लाइंट्स के ऊपर बेस्ड है। आइए अब बात करते हैं, क्या आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए, तो क्या कोई एडवर्टाइजमेंट तो हम कर सकते होंगे? कुछ एक्सेप्शन तो होंगे एडवर्टाइजमेंट करने के, न्यूज़पेपर में या कहीं भी कर सकते हो। कैसे? अगर आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, if there is reconstitution of the firm, your firm is being reconstituted, you have to give public notice that this partner is being retiring and a new partner is coming. हाँ, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट आप दें उसको बहुत ही संयत भाषा में दें, वेरी कामली एंड वेरी कूलली,
You can't say number one firm of Indore is now reconstituting itself by introducing new young bloods and retiring the old experienced partners who even after retirement will guide us, will bless us, and we will remain number one. We were, we are, and we will be number one. क्या टशन है सर. चुपचाप पब्लिक नोटिस दो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है. डू नॉट सॉलिसिट क्लाइंट्स. क्लाइंट को सॉलिसिट ना करें अपने आप को नंबर वन फर्म बता के. थैंक यू. ओके सर, दैट मीन्स वी कैन गिव पब्लिक नोटिस in newspaper regarding reconstitution of firm without any self praise. Okay. Employee article partners required. You can advertise in newspaper for employee article partner required. No problem in that, but don't give the advertisement in self-praise manner. We, the number firm of Mumbai, is calling employees, articles and partners to become part of our number one team of Mumbai. Oh, hero. नहीं हो पाया. ये नंबर वन फर्म ऑफ मुंबई आपने बोल दिया ना, बहुत छोटी बात कर दी आपने. सब इक्वल है, समाजवाद है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं. सॉरी सर, आप अपने आप को बड़ा ना कहें. आपको सिंपल रिक्वायरमेंट चाहिए, आप सिंपल रिक्वायरमेंट डालिए. वॉल मान लो आर्टिकल्स के लिए आर्टिकल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया. इफ यू वांट टू groom yourself in all facets of profession, join the leading firm of Indore, असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट. बाकी सारे से ये बोलेंगे क्यों रे, हम नहीं सिखाते, तू ही एक सिखाएगा, तू लीडिंग है तो हम सब क्या फॉलोअर है. हद कर रहा है यार भाई. बिल्कुल सही बात. हारमोनी खत्म होती है. ऐसा काम करना ही चाहिए. क्लियरली बोल दिया. डोंट डू दैट. क्या बच्चा. तो एम्प्लॉय आर्टिकल पार्टनर्स रिक्वायरमेंट यहां पर भी नहीं डालना है. सर चेंज इन ऑफिस एड्रेस, और चेंज इन टेलीफोन नंबर. सर चेंज इन ऑफिस एड्रेस के लिए भी दो, चेंज इन टेलीफोन नंबर के लिए भी लो, लेकिन सेल्फ प्रेज बिल्कुल नहीं. नाउ द लीडिंग फर्म ऑफ इंदौर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड इंदौर सिटी टू न्यू इंदौर सिटी टू गिव मोर कन्वीनियंट सर्विसेस टू आवर एस्टीम्ड क्लाइंट्स. If you want to have an experience, come and give us one chance to serve you at a new place. Sir, please don't do that. क्योंकि आप जो ये कर रहे हो ना, ये एडवर्टीजमेंट है. Now all your tax problems have a very easy number to remember. 8383838383. All tax problems. वाह वाह वाह. चेंज इन टेलीफोन नंबर नहीं हुआ, आपने तो जस्ट डायल का एडवर्टाइजमेंट दे दिया. तो सर फिर चेंज इन टेलीफोन नंबर का एडवर्टाइजमेंट कैसे देंगे? अरे बिल्कुल साधारण सा सूचना, जाहिर सूचना. पुराना टेलीफोन नंबर, नया टेलीफोन नंबर. असुविधा के लिए क्षमा. असीम त्रिवेदी एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंदौर. खत्म. इससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देना है. काम ही खत्म हो गया सर. इससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देना है. नो एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड.
पॉसिबल ही नहीं, देना ही नहीं। ओके सर, काम मांगने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दूं क्या? मतलब जैसे मैं चाहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं, मुझे काम चाहिए, तो मैं एडवर्टाइजमेंट देना चाहता हूं न्यूज़पेपर में, क्या मुझे काम चाहिए? अच्छा, मतलब तुम अब न्यूज़पेपर में हमारी ब्रांड सीए की इज्जत की मिट्टी पलित करोगे? नहीं होगा। कहीं तो जाऊं काम मांगने, जाना। ICAI न्यूज लेटर, काम मांगो आप, इस कौन मना कर रहा? ICAI का CIRC का न्यूज लेटर है, SIRC का न्यूज लेटर है, EIRC का न्यूज लेटर है, WIRC का न्यूज लेटर है, सबके न्यूज लेटर है, IRC के न्यूज लेटर, सबके न्यूज लेटर। न्यूज लेटर में काम मांगो, अपने घर में चिल्लाओ, उनको काम चाहिए, बाहर जाके क्यों चिल्लाते? सर बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में दे दूं? बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में आप काम नहीं मांग सकते सर, वो भी तो ना, दैट इज नॉट ICAI's न्यूज लेटर। सर ITR CTR में मांग लू? ओनली इन ICAI न्यूज लेटर, दैट इज ओके। एनी मोर एडवर्टाइजमेंट आई कैन गिव? नो, बस these are allowed. Fine. Now, sir, there are certain firms, there are certain banks who have their impanelment board, which impanels chartered accountant around the year for whatever services they want from chartered accountant, like stock audits of the borrower accounts. For stock audit of borrower accounts, they majorly call the profiles of chartered accountant firms. Can I submit profile of my firm to these kind of impanelment firms? Yes, you can. You can do this. ऐसा बिल्कुल आप कर सकते, no doubt about it. Can very well and very easily do this. You can get work by sending profiles to those banks which have their empanelment board. But mind it very carefully. You should have knowledge of the same, that there is a panel. So application of allotment for work to get impaneled at panel created by any organization, provided member has knowledge of such impanelment board. So simple. One question came in exam once. Very interesting question that was. A chartered accountant in practice wrote letters to several banks whether they have any panel, and if they have any panel, kindly consider this profile. Sir, when you did not have knowledge of having panel over there, how dare you to do that? आप ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा आप नहीं कर सकते सर, सॉरी, can't do that. So panel created by any organization provided member has any knowledge of such empanelment body. If member has no knowledge, sorry sir, you can't. Very good. Next. Sir, one more question came in exam, very interesting. Sir, there was an empanelment board
member had knowledge of the same, member sent the profile, and now everyone writing a letter to the director of that empanelment board. We submitted our profile, we did not get any work. Why so? Can I write these kind of letter for follow-up to those empanelment board where I have given my profile? No, sir. It will again soliciting the client. Should not do that. आपको ऐसा करना ही नहीं है. Make it sure that you should not do that. Now, this is called what? Application for allotment of work to get empaneled. Now, telephone directory. Can I put my name in telephone directory? Yes. Why? Normally, in usual manner only. In usual manner only. टेलीफोन डायरेक्टरी में आपने नाम दिया. कैसे दिया? टेलीफोन डायरेक्टरीज आजकल तो बहुत इरेलेवेंट हो गई हैं, पर मान दो ई डायरेक्टरीज ही, और डायरेक्टरीज में आपने नाम दिया. पहली बात, हम डायरेक्टरी में नाम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं. पब्लिक डायरेक्टरी, प्राइवेट डायरेक्टरी दोनों में दे सकते हैं. पब्लिक डायरेक्टरी में तो आप दे ही सकते हो. प्राइवेट डायरेक्टरी के नियम में भी आपको मैं बताऊंगा, बट यस, पब्लिक डायरेक्टरी में तो आप दे ही सकते हो. नाउ BSNL, MTNL, इनकी डायरेक्टरी में आप अपना नाम देना चाहते हो, दो. सर कवर पेज खरीद लूं? सॉरी, कवर पेज खरीद लूं? कवर पेज मीन्स ऊपर ही, मतलब जैसे ही डायरेक्टरी का कवर होगा उसी पे लिखा रहेगा असीम त्रिवेदी एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुलुंड वेस्ट, मुंबई. वाह, सॉरी सर, नॉट अलाउड. अंदर वाले पेज पे नॉट अलाउड. बैक कवर नॉट अलाउड. बैक इनसाइड नॉट अलाउड. येलो पेजेस में नेम एंड नंबर अलाउड. ओनली वन कैटेगरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड. एंड डोंट give any advertisement over there in yellow pages. Just give name, number, only in category of chartered accountants. क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता चला था कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने शाणे थे कि उन्होंने येलो पेजेस में अपनी फर्म का नाम तो दिया, कहां, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में भी इंक्लूड कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी इंक्लूड कर दिया, इंटरनल ऑडिटर्स में भी, कंसल्टेंट्स में भी, हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेगा. ओनली इन कैटेगरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर अलाउड एज येलो पेजेस. चार्टर्ड अकाउंटेंट और निकले भैया तेज. अब क्या करा सर? उन्होंने कहा कि टेलीफोन डायरेक्टरी वाले बंदे से पूछा, सर इनमें से कोई एक काम कर दो. क्या? हमारा नाम है ना बोल्ड कर दो, ताकि बाकी सबके अंदर हमारा नाम अलग से झांके. अच्छा, एक काम करो सर, हमारे नाम को अलग कलर की इंक से डाल दो. अच्छा, बहुत बढ़िया. सर एक काम करो, हमारा नाम है ना, मेरा नाम लिखो असीम त्रिवेदी में भी लिखो, फिर त्रिवेदी असीम में भी लिखो. भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा. जितनी तकलीफ एक सामान्य नाम को ढूंढने में होती है, उतनी तकलीफ आपके नाम को ढूंढने में भी होनी चाहिए. बात खत्म हो गई. नो स्पेशल प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड इन एनी ऑफ द पब्लिक टेलीफोन डायरेक्टरी. दैट्स इट. न डायरेक्टली न इनडायरेक्टली. ठीक है. व्हाट अबाउट प्राइवेट डायरेक्टरीज? पहली बात तो प्राइवेट डायरेक्टरी में नाम देना क्यों? अगर आप दे रहे हो तो दो, लेकिन दैट डायरेक्टरी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी कास्ट
any religion, any restricted geographical area. माहेश्वरी युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टरी, अच्छा, इसमें सारे माहेश्वरी युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम हैं और ये डायरेक्टरी हमने इसलिए बनाई है कि हमारे जितने समाज के व्यापारी हैं उनको हम ये डायरेक्टरी भेजेंगे तो माहेश्वरी समाज के व्यापारी माहेश्वरी समाज को क्या देंगे, काम देंगे। वाओ। फिर अग्रवाल समाज आ जाएगा, फिर जैन समाज आ जाएगा, फिर शाह समाज आ जाएगा, है ना, फिर ब्राह्मण समाज आ जाएगा। बांट दो पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को धर्मों में, जातियों में, वर्णों में बांट दो, यही बचा है बस अब तो। शट अप, नॉट डूइंग दैट, अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? मैं जैन हूं तो जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट की डायरेक्टरी में मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसमें असीम त्रिवेदी का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि वो जैन नहीं है। वहां तो अलाउ कर रहे थे आप बीएसएनएल में। अरे बीएसएनएल में ना जाति पूछी जाती ना धर्म पूछा जाता है, कैसी बातें कर रहे हो आप? कास्ट, रिलीजन, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब साउथ मुंबई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन डायरेक्टरी। हाय 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 हाय, क्या करोगे? पूरे साउथ मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जगह आ गए, वो नॉर्थ मुंबई वाला आना चाहे तो बोला नहीं आ, ईस्ट वाला, तो फिर ऐसी डायरेक्टरी अलाउड ही नहीं। सॉरी, नॉट अलाउड। प्राइवेट डायरेक्टरी कैन नॉट बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ if they are based on caste, religion or restricted local area. You cannot have that. Enter your name into such kind of a telephone directory. Not allowed, sir, not allowed. Okay. घनघोर जैसे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। घनघोर ने कहा सर मैं तो है ना सर आस्क मी सर्विसेज पे जाना चाहता हूं, लाइक जस्ट डायल। हर मूवी के एड में मेरे को अमिताभ बच्चन साहब दिखते हैं, वो बोलते हैं जस्ट डायल, तो सर मैं अपना नाम जस्ट डायल में देना चाहता हूं, दे दूं क्या? लेकिन बिड़ू जस्ट डायल को कोई भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, ताकि किसी ग्राहक का फोन आए तो तेरा प्रेफरेंस वो दे, ऐसा मत ही करना। डला रहने दे बस, जस्ट डायल पे बात खत्म हो गई, उससे ज्यादा कुछ मत करियो। तूने अगर जस्ट डायल को प्रीमियम दे दिया कि सर कोई भी नाम पूछे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मेरा बताना, आप लो प्रीमियम, आपको क्या लेना है? Just I'll give these kind of services, but you cannot avail these kind of services. It's very important. Cannot solicit your client in any manner. आप क्लाइंट को सॉलिसिट ही नहीं कर सकते सर, बात ही खत्म हो गई। Got it? आगे बढ़े, लेट्स मूव। घनघोर है, भयंकर दिमाग है, घनघोर दिमाग है सर। मुंबई लोकल में हैंडबिल्स बांट दिए सर, पैन नंबर 300 रुपीज, GSTIN 500 रुपीज, लोकल में चिपके हुए ऊपर सब दूर हैंडबिल्स। भैया क्या परचून की दुकान है क्या है कि कोई नया स्टोर खुला है जो ऐसे पर्चे बांट रहा तू? नॉट अलाउड, हैंडबिल्स, पैम्फलेट्स, दिस दैट, नॉट अलाउड। ओके सर, मैं अपना नाम है ना बुक्स एंड आर्टिकल्स में ना इकोनॉमिक टाइम्स में लिखना चाहता हूं। ओ भाई लिख, कौन मना कर रहा तेरे को? सर मैं दैनिक भास्कर में लिखना चाहता हूं, ऐसे ही समसामयिक विषयों पर लेख लिखना चाहता हूं। ओ लिख भाई लिख, कोई दिक्कत नहीं।
सर नई टैक्स रेजिम पे मैं लिखना चाहता हूं, जीएसटी पे लिखना चाहता हूं, मेरे अंदर बहुत विचार है, मेरे को सारे निकाल के पेपर पे रखने भाई। रखना यार, कौन मना कर रहा भाई। अपन जो है इकोनॉमिक टाइम्स में डालेंगे, डालना भाई, ध्यान रखियो। इकोनॉमिक टाइम्स में तेरा नाम छपे, असीम त्रिवेदी। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के साथ तेरी फर्म का नाम आने का नहीं, असीम त्रिवेदी एसोसिएट चार्ट अकाउंटेंट। नो 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 सर, नो नो नो, ओनली असीम त्रिवेदी चार्ट अकाउंटेंट। आगे न पीछे कोई शब्द नहीं। फर्म का ईमेल एड्रेस डाल देंगे, इनडायरेक्टली, नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली। सर मत करो, डोंट डू दैट। कोई सी भी किताब लिखूं, कोई सी भी आर्टिकल लिखूं, सर मैं ऐसी किताब लिखूंगा कि देश में दंगा हो जाए। कम्युनियल किताब लिखूंगा, भयंकर हिंदुइज्म पे ऐसी किताब लिख दूंगा कि साला दंगा ही हो जाए। ओ डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन। अदर मिसकंडक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक। नहीं तो मैं तो ढंग की बुक्स में, उल्टी सीधी किताबों में तुम्हारे आर्टिकल नहीं छपेंगे, उल्टे सीधे विषयों पर तुम्हारे आर्टिकल नहीं छपेंगे। और अगर उल्टी सीधी किताबों में अपने उल्टे सीधे आर्टिकल छपवाने हो तो सीए की डिग्री छोड़ दो बाबू, तुम फिर जो छपवाना छापो। नाउ ओके सर, रोविंग इंक्वायरी मतलब मैं आर्टिकलों को सुबह से भेज दूंगा, दुकान दुकान जाओ, पूछो काम है क्या, ले आओ। अच्छा, और लड़कियां, उनका तो कॉल सेंटर बना देना सर, हर दुकान पे फोन लगा रही हूं। सैल्यूट है बाबा तुमको, नॉट अलाउड। पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल और वो तो अलाउड है, लेकिन उसमें फॉर्म का नाम नहीं आना चाहिए। ओके सर, वो क्या है, अपने एक सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 है, हाँ है ना, उसमें ऑडिटर को रिमूव करते हैं सो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देते हैं, हाँ देते हैं। वो अपने साफ सफाई में कुछ कहना चाहता है कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे की रीजन वो शेयर होल्डर को देना चाहता है। हाँ तो भाई रिटर्न स्टेटमेंट बना के दे दे, शेयर होल्डर तक पहुंचा देंगे। सब वो शेयर होल्डर तक पहुंचाया नहीं गया, दिया तो था उसने। नाउ ही हैज अ राइट अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 टू स्टैंड बिफोर जनरल मीटिंग एंड रीड दैट स्टेटमेंट। हाँ तो रीड, लेकिन वहां पर एडवर्टाइजमेंट करने का नहीं। घनघोर, तू घनघोर बुद्धि का आदमी, तू वहां खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद क्या बोलेगा, मैं घनघोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां से हटाने की। और आप लोग शेयर होल्डर्स के सामने मेरी रेजोल्यूशन रख रहे हैं। ये लोग ये जानते हैं अंबानी इसका ऑडिटर में, अडानी इसका ऑडिटर में, टाटा इसका ऑडिटर में, किन किन का ऑडिटर नहीं हूं मैं। 50 साल से मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, और ये हटा रहे मुझको। जितनी छोटी छोटी फॉर्म बनी है ये सारे आर्टिकल मेरे ही थे, किसी से भी जाके पूछ लो। 50 सालों से मुंबई पे राज कर रहा हूं मैं। ये भैया हो अंकल, तेरे को बोलने का है तो तू बोलना कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है। एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा भाई, एडवर्टाइजमेंट करने का नहीं। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 क्लियरली कह रही है नो एडवर्टाइजमेंट, नो एडवर्टाइजमेंट होना ही नहीं। ओके सर, रिप्रेजेंटेशन के वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देना, सिंपल सी बात। पब्लिक इंटरव्यू, सब मेरे को किसी न्यूज चैनल ने बोला है, आइए सर
आपका सम्मान है। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में क्यों शर्मिंदा कर रहे? नहीं सर, आपने अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में तो बहुत कुछ बताने को। इंदौर आया था मैं, बड़े मुफलिसी में चप्पलें रगड़ते हुए सीए शुरू किया, आर्टिकलशिप की, चने खाए, कई बार भूखा सोया, इमोशन, और दिन रात मेहनत की, कई बार रिजल्ट सही नहीं आया, अकेला रोता था, इमोशन। एक दिन आया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इंदौर में, कोई प्रैक्टिस देने को तैयार नहीं था। अपना काम जैसे उनको ऐसा लगता था कि वो मुझसे, मैं उनका काम छीन लूंगा, इमोशन। फिर भी मैंने अपना पूरा मुकाम बनाया। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मां तो है ही, और बड़ा ऑफिस है। ऑफिस में 300 क्लाइंट है, 250 का आर्टिकल्स का स्टाफ है, 25 पार्टनर है। देखिए, चप्पलें घिसते हुए आया था और आज ये हालत है मेरे ऑफिस की। सर आपकी तो लाइफ ही बोले बहुत ही प्रेरणादायक है। हाँ, सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, मेरे जैसा बनना चाहिए। ओ भैया, ओ क्या कर रहे हो? आपसे पूछा अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपने तो एकदम मतलब क्या भारत रत्न दे दे आपको, क्या करें? गजब कर दिया सर आपने। सर, सेल्फ प्रेज इज नॉट अलाउड एट ऑल। और तो फिर इंटरव्यू वाले ने बुलाया तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, इंटरव्यू वाला आपको पूछता जाए, आप जवाब देते जाओ। सर आप तो बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ, मेरे साथ के और भी लोग हैं सीनियर, मैं तो हूं ही। हमने सुना आपकी बहुत बड़ी फर्म है। हाँ, इट इज वन ऑफ द फर्म्स, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी फर्म है। सर आप तो इंदौर की नंबर 1 फर्म हो, ऐसा आप कह रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हमने सुना है कि आपको तो मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और फिर ये सीए बने। देखिए सर, अपनी अपनी लाइफ का सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है। नो सच थिंग, इट्स नॉट बिग डील। वाओ, तो आपको ऐसा इंटरव्यू देना है, आपको ऐसा इंटरव्यू देना कि मैं नॉट अलाउड। सर ये इंस्टीट्यूट इतना सोचती कैसे? सोचती नहीं है, अपने मेंबर घनघोर जैसे है ना भैया। अरे इंस्टीट्यूट को एजुकेट कर दिया उन्होंने, देखो कितनी सारी चीजें बना दी इंस्टीट्यूट। बॉक्स नंबर आजकल नहीं चलते, पहले चलते थे। पहले क्या होता था? एक होता था आपका पोस्ट ऑफिस, एक होता था आपका न्यूज़पेपर वाला, और एक होते थे आप। आपको अगर अपनी आइडेंटिटी छुपा के कोई लेटर अगर मंगवाना हो तो आप क्या करते थे? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते थे। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अवेलेबल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट. If you want your statutory audit to be done, kindly mail your requirement at post box number 7976 at दैनिक भास्कर, मुंबई. अब वो पोस्ट पहुंच जाती थी, पोस्ट बॉक्स नंबर यहाँ. पोस्ट बॉक्स नंबर यहाँ मतलब कहां पर? पोस्ट ऑफिस से तो बंदा डालता था पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस पहुंचा देता था ये सारे पोस्ट बॉक्स नंबर 7979 में. कहां पर? न्यूज़पेपर वाले को. न्यूज़पेपर वाला उन सारे रिक्वायरमेंट्स को उठा के किसको दे देता था? बंदे को. हिडन आइडेंटिटी के साथ बंदा काम कर सकता था. लेकिन ऐसा काम करना इस बंदे को इंस्टीट्यूट ने अलाउ ही नहीं किया कि इस तरह से पोस्ट बॉक्स नंबर लगाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते. नथिंग कैन बी डन by having such kind of post box number. ना हो पाएगा. No post box numbers. What about website? अभी इस पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले बाकी और काम कर लें. Can we have greeting cards and invitation cards to be published and to be circulated? हाँ, अरे ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, इनविटेशन कार्ड बनाओ
उसके अंदर फर्म का नाम लिखो, लेकिन ध्यान रखना दिस शुड बी सर्क्यूलेटेड टू whom? Clients, relatives, friends, and nearest and dearest. नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लाइंट, इनके अलावा अपनी फर्म का नाम लिखा हुआ कार्ड किसी को भी देने की जरूरत नहीं है सर। पूरी पब्लिक नहीं करनी है। घनघोर जैसे ही सीए बना बोले यार मैं तो माता का भंडारा करवाऊंगा। सबसे पहले ऑफिस डाला, ऑफिस में ही भंडारा कर दिया और भंडारे में बुलाया पूरे साउथ दिल्ली को, पॉश भंडारा, ऐसा भंडारा सदियों तक याद रखे आदमी। और बुलाया सबको, साउथ मुंबई में भंडारा चल रहा बताओ, और इनविटेशन भंडारे के चल रहे हैं, ऑटो पे सब दूर, और नाम घनघोर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट पेश करती है, भंडारा भंडारा भंडारा। आओ, और ऐसे बुला रहे हो इनविटेशन में सबको। शुड नॉट डू दैट। एनी इनविटेशन और ग्रीटिंग कार्ड इफ कंटेन्स योर फर्म्स नेम should only go to privately client, relative, friends, nearest and dearest. That's it. किसी और को गए तो इंस्टीट्यूट तुमसे बुला के पूछेगा इन पांचों में से कौन है, बता दे भाई। And if you are not proving, it would be a misconduct. Don't have an initial marketing budget while becoming a chartered accountant. Institute will not love that. क्या सर, हर जगह तो बंद कर दिया हमको। नहीं बेटा, अपने काम से पहचान बनाओ। ओरिजिनल वर्क, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस। एक थे मिस्टर राधेश्याम, उनका एक शिष्य था घनघोर, जो उनकी आर्टिकलशिप हुई और अब सीए बना। रिजल्ट आया था, मिठाई खिलाने आया था मिस्टर राधेश्याम को। राधेश्याम सर मैं पास हो गया हूं, अब सीए हो गया हूं, अब मैं अपनी प्रैक्टिस डाल रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, सुन घनघोर, मैं अपने क्लाइंट के पास जा रहा हूं, चल जरा मिलते हैं, मिल के आते हैं। क्या कर रहा है तू दिन भर? कुछ नहीं कर रहा हूं सर, आपसे बातें हो जाएंगी, चलिए। ये दोनों गए इस क्लाइंट के पास। इस क्लाइंट ने इन दोनों से मीटिंग की और बीच बीच में घनघोर ने अपनी कुछ अपडेट जानकारियां देना शुरू की। क्लाइंट बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार ये जो राधेश्याम नाम का मेरा ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये फीस भी ज्यादा लेगा, इसको नॉलेज भी कॉन्टेम्पररी नहीं है। ये बंदे को कॉन्टेम्पररी नॉलेज है, नया नया सीए, इसको तोड़ता हूं। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने उठा के किसको पकड़ा? घनघोर को। बोले बॉस तुम हमारा ऑडिट कर दोगे क्या? बुक कीपिंग कर दोगे? ये कर रहे हैं। तुम्हारी बुक कीपिंग कर दोगे कि ये करते हैं हमारी बुक कीपिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दोगे कि ये हमारी बात बजाते हैं? तुम्हारा जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का काम कर दोगे कि ये करते हैं? क्या फीस लोगे? सर वो क्या फीस लेते? अरे यार वो बहुत ज्यादा लेते, वो तो 5 लाख रुपए लेते हैं साल के। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे को 2 लाख दे देना, मैं कर लूंगा। ओरिजिनल वर्क वॉज फ्रॉम राधेश्याम। You fool, what you are doing? क्या कर रहे हो आप मिस्टर घनघोर? What the hell you are doing here? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम को बिना उसको इंटीमेट किए, बिना उससे बातचीत किए, उसी का क्लाइंट आपने तोड़ लिया। इसे तो सॉलिसिटेशन कहते हैं। मैं क्या करता हूं, वो मेरे पास आया। भाई साहब अगर वो आपके पास आया तो आपको एक लेटर लिखना था इनको कि सर ये मेरे पास आया, मैं ले लूं क्या ये काम? अभी मैं क्लॉज नंबर 8 जब पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा कि आपको इनको बोलना था कि सर मैं काम ले लूं क्या। अगर आप नहीं ले पाते तो बात अलग थी। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? सॉरी, इट इज अ मिसकंडक्ट, बिल्कुल मिसकंडक्ट। तो भाई किसी में ये तो सब थे,
पर कोई भी ऐसा पॉइंट आपको मिलता है जो ऊपर लिस्टेड नहीं है लेकिन जिसमें सॉलिसिटेशन हो रहा है, अभी तो क्लॉज 7 आएगा, क्लॉज 7 के साथ सॉलिसिटेशन के पॉइंट्स और आएंगे, बहुत वास्ट है सॉलिसिटेशन। तो अगर ऐसा कोई सॉलिसिटेशन हो रहा है ना बॉस, तो वी शुड डेसिस्ट, हमें ऐसे सॉलिसिटेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि क्लॉज नंबर 6 में अदरवाइज वी विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब क्लॉज 6 में बचा है एक डिस्कशन, दैट डिस्कशन इज अबाउट वेबसाइट। सो लेट्स बिगिन विथ वेबसाइट। आइए अब जरा वेबसाइट पे बात करें। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की वेबसाइट हो सकती है? Is it possible that a chartered accountant in practice can have its own website? Yes, sir. हमेशा a chartered accountant in practice can always have a website. No doubt about it. Okay. What should be its color? What should be its design? Anything quite sober. Okay. What should be its name? Sir, name should be as near as to firm name. कोई शगुफा नहीं चाहिए, as near as to firm name होना चाहिए। taxplanners.com, taxevaders.com, घनघोर tax, घनघोर the taxsavior.com. You can't have these kind of websites, can't create sensation through the names. Keep name is घनघोर CA and company, or घनघोर and company, तो GC and company, whatever. You can have that name. Fine. Website should always be on pull mode and not on push mode. Your website cannot be on push mode. लोगों को धक्का धक्का के नहीं दिखाएंगे आप। बेचारे ने अपने कंप्यूटर से आपकी वेबसाइट को लॉगिन करके ऐसा पाप किया कि आपकी वेबसाइट ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया। अगले 15 मिनट तक सिर्फ आपका ही गुणगान चल रहा है कि आप कौन हो। बंदे के पास कंट्रोल अल्ट डिलीट करने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं बचा कि वो आपके उस प्रोग्राम से निजात पाए। तो मैं कहूंगा आप ऐसी वेबसाइट नहीं बना सकते। वेबसाइट के सामने सब लिख दो। वेबसाइट विल बी जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट वेबसाइट के आदमी को जो देखना है वो देखे। दैट इज कॉल्ड पुल रिक्वेस्ट, नॉट ऑन पुश मोड। आपको देखना है, हाँ आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फर्म, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स, आप देख सकते हैं नेम ऑफ पार्टनर, आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पार्टनर, आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ आर्टिकल। मांगोगे मिलेगी, फोर्सफुली नहीं दी जाएगी। मांगोगे मिलेगी, फोर्सफुली नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। पुल रिक्वेस्ट, फाइन। नाउ रिक्वेस्ट मोड पर यानी पॉपअप डालें आप, पार्टनर्स का नाम, उनका एक्सपीरियंस, उनका डिटेल्स, आपकी मतलब सामने वाला रिक्वेस्ट करे तब, ऐसा नहीं कि सर फोटोग्राफ अलाउड है वेबसाइट पे, बिल्कुल अलाउड है। यू कैन हैव गुड फोटोग्राफ्स एट वेबसाइट बट नॉट इनडिसेंट फोटोग्राफ्स, and only photographs of partner and related to firm, not of photograph of caterer CAF. Now, sir, can we have the photographs and all the photographs which we have there? So, can we have logo of our firm? You cannot have logo of your firm. आपकी firm का logo नहीं होगा. The only logo available to you is the logo of ICAI. No firm's logo is permitted on website. Website पर कोई logo नहीं होगा. Can we give on our website the galaxy of our clients?
Can we give client's name on our website? Sorry sir, you cannot give client's name on your website. आप अपनी वेबसाइट पर अपने क्लाइंट के नाम नहीं दे पाएंगे, आप वो नाम कतई नहीं दे पाएंगे. You cannot give name of your clients on website. हाँ, आप ये दे सकते हो कि वी आर सर्विंग टू केमिकल इंडस्ट्री, वी आर सर्विंग टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. नो क्लाइंट्स नेम. कैन वी यूज टेस्टिमोनी? नो, नॉट एट ऑल. पता चला कि वहां पे टेस्टिमोनी डाल दिया. हाय, आई एम कैटरीना कैफ, माय टैक्स कंसल्टेंट इज मिस्टर घनघोर एंड आई एम very much satisfied with Mr. Ghangor's work. As you have given work to Mr. Ghangor, you are tension free. I'm focusing on my acting and rest is done by Mr. Ghangor. Wow. You cannot have these kind of testimonies in your website. Sorry. No testimonials. Okay. Can we have website with a chat room? Yes, you can have website with a chat room, but that chat room will be open only for members of the institute, only for your existing client, but you cannot have prospective client to chat and solicit. Okay. Can we have bulletin board on our website? You can have bulletin boards on your website. अच्छा है, नए नए डेवलपमेंट डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एक मिनट, बुलेटिन बोर्ड का मतलब ये नहीं कि बुलेटिन डाला और पूरे जमाने में स्प्रेड कर दिया. नो वे. Can we advertise our website on any medium? No, you cannot website on any other mode. You cannot. आप नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट. पता चला स्कूटर्स पे, कार्स पे, जगह जगह स्टिकर लगा दिए www.ghangor.com. लोग ढूंढ रहे भाई ghangor.com क्या है. No, you cannot. Okay. So can we have on our website link of other websites? No. You from your own website you can give link for ICI website or any governmental official website, but you cannot give website of each other. That I am a chartered accountant, you are a chartered accountant, Mr. Ghangor and Miss Chechor, two chartered accountants are there, both are having their own website, they are cross linking their websites to each other. For GST purpose go there, for income tax purpose come here. No, not at all. It is not required. You cannot give website name of each other's firm. Okay sir, वेबसाइट बनाते ना, तो वेबसाइट बनाते समय ना क्या होता है आपको मालूम है? वेबसाइट जब बनती है ना तो एक प्रॉब्लम होती है. क्या? वो उसकी फिक्स कॉस्ट होती है. अच्छा, तो तुम क्या करना चाहते हो? सर हमने ना टैक्समैन से बात कर ली है और बाकी भी पब्लिशर से बात कर ली है, ITR CTR वालों से बात कर ली है. वो बोल रहे हैं कि हम अपने बैनर डैंगलर पोस्टर आपकी वेबसाइट पे लगाएंगे, आपको वहां से 3, 4, 5, 6 हजार रुपए साल मिल जाएंगे, उससे आपका वेबसाइट मेंटेनेंस कॉस्ट निकल जाएगा. सो इट्स अ गुड प्रपोर्शन. नो सर, यू कांट डू दैट. आप ऐसा कोई डैंगलर, बैनर, पोस्टर ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हो अपनी वेबसाइट से. पॉसिबल ही नहीं है. भूल जाओ इस बात को कि ऐसा कुछ तुम कर सकते हो अपनी वेबसाइट से. नॉट पॉसिबल. हमारी वेबसाइट हम अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए. क्या बार बार इस अपडेट को इंस्टीट्यूट को भेजने की जरूरत है? नहीं, इंस्टीट्यूट खुद अपनी वेबसाइट पे आपके अपडेट्स देख लेंगे. है, देयर इज नो पॉइंट इन दैट. ओके. So, can we give online services through this website? No, sir. You cannot give online services through this website. Online services you can give with your website, but only through existing client, not your prospective clients. Any other thing in website? No, I have covered all the things. Rest you can cover through your own book. उसमें भी पूरा दिया हुआ है वेबसाइट के बारे में. ओके. वी वांट टू गिव हिस्ट्री ऑफ अवर फर्म इन वेबसाइट. गिव इट, बट ओनली ऑन पुल रिक्वेस्ट. सो क्लाइंट नेम नॉट अलाउड. कैन वी प्लेस अवर रेट कार्ड फीस? नो रेट कार्ड, नो फीस.
No rate card, no offers. You cannot give offer 20% discount on my website. Can we have one thing, that if anybody comes to our website, he has to give his email address. Means to log in on my website, you have to give your email address and phone number. और एक बार मेरे पास ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आ गया विजिटर का नाम, और सर मैं उसको क्या क्या नहीं भेजूंगा, मतलब ये अपडेशन वो अपडेशन, मतलब माला माल कर दूंगा उसको अपडेशन से. नहीं, नॉट अलाउड फ्रॉम योर वेबसाइट. तो फिर बनवाई क्यों रहे हो वेबसाइट? अब वो आप देख लो. आपको बनानी है तो वेबसाइट शुड बी ऑन दिस मोड एंड इट वुड बी लाइक दिस ओनली. Can I have 3-4 website? Only one. So thank you. Then all about website. So this was clause number 6. Though today our lecture is over by 10 minutes earlier, but no problem. We'll stretch it in the next few, because clause number 7 I can't start. It's again a very big clause, as we had clause number 6 today. So how many clauses we have done till now? Let's have a revision. What clauses we have done? Clause 1, allowing a person to practice in his name. Clause 2, I love revision, you also love revision. What we did today, let us have what we did today. Clause number today nahi, let's have a revision of all clauses. What was clause number 1? Allowing a person to practice in his name. That is allowing. Clause number 2, share. Given or taken. First given and then taken. Okay. 4th, partnership. 5th, soliciting client. No. 5th, securing business through services of person. 6th, soliciting. So we have all 6 clauses right now till our day 3. We'll move ahead with other clauses in tomorrow's lecture. Thank you. Thank you very much.